You must understand paper attempting technique. Okay, how you are required to attempt part B answer. You need to develop your answer well. If you don't develop it well, and if you do not relate your answer with current situation, if the situation demands, so it is difficult for you to achieve high marks. Okay, this is very important and you must remember it. Secondly, it is also important for you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all in Cambridge exam preparation series. I hope you must have watched previous videos which were about question number 2, and I hope you should not have any issue regarding now question number 2. So now we have in this video question number 3 and 4, and I am going to guide you through important tips and various guidelines that how you can attempt question number 3 and 4 of paper 1. Okay, so without any delay, let's move ahead. But if you have not subscribed the channel yet, so subscribe it now so that you should be able to receive all upcoming videos on time. So dear students, as you all are well aware of the fact that question number 3 and 4 of paper 1 2058 paper 1, they are set from life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay, so in the series of these videos, we are basically step by step discussing different questions. Okay, so in previous videos we discussed question number 2, and now there will be around 3 videos for question number 3 and 4, and then question number 5 will also be discussed, and then we will be moving towards paper 2 inshallah. Okay, so be with me and watch all these videos properly, carefully, with full concentration till the end, and inshallah before your exams you will be able to learn how to write proper answer for all these questions and how to attempt paper 1 and then paper 2. Okay, I will be guiding you in all these questions. I will be guiding you in fact the answer technique, and then I will be providing you under all these questions various tips, important tips about how to attempt these questions and about how to attempt overall exam paper, Cambridge exam paper. Okay, so let's move ahead. So first of all, we have question from summer 15. I have deliberately skipped some those questions which are comparatively easier and opted little tricky question. Okay, so that if you have some confusion about opting them, about how to solve them, so I hope my guidelines will be important for you and will help you to write the proper answer, in fact perfect answer for these questions. So the question is, give an account of the way in which the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam started to preach Islam in the first few years after he received first revelation. Okay, so let's move to guidelines. मैं आपको यहाँ पे जो गाइडलाइंस दूंगा तो वो परफेक्ट होंगी, बस आपने मैं जानता हूँ कि आप ऑफ कोर्स, और ये एज्यूम किया जा रहा है कि आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक, तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं गाइडलाइंस दूंगा. बाकी जो डिटेल है डेफिनेटली वो आपकी टेक्स्ट बुक्स में आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है. मार्केट में बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हैं और इवन सॉल्व पास पेपर्स भी अवेलेबल हैं. लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि आप ख़ुद अपने आंसर्स कैसे डेवलप कर सकते हैं.
और आपको करना भी यही चाहिए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको यही समझाने की कोशिश की कि जब तक आप ख़ुद अपने आंसर डेवलप करना नहीं सीखेंगे आप मुश्किल में रहेंगे, ठीक है। यू विल फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट एंड यू विल थिंक दैट इस्लामियात इज़ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट. So those students who try to learn everything by heart, so definitely it is very difficult for them. But for those who manage to understand the things properly, it is no more difficult at all. Okay, so let's see कि हमने करना क्या है. सबसे पहले हर आंसर में ये इंपॉर्टेंट टिप जहन में रख लीजिए, जब भी आप कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे तो उसको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है. सबसे पहले आपने उसका इंट्रोडक्शन लिखना है और उसके बाद फिर आप उसका एक मेन बॉडी होगी कोई आंसर की, उस मेन बॉडी में फिर आप ऑलमोस्ट 3 से 4 पैराग्राफ्स बनाएंगे, ठीक. और हर पैराग्राफ आप कह सकते हैं कि तकरीबन 10 to 12 लाइन्स पे मुश्तमिल होना चाहिए. बहुत ज़्यादा छोटे पैराग्राफ्स भी आपने नहीं बनाने हैं, ठीक है. एंड देन इन दी एंड फिर आप उसका एक मुख्तसर कंक्लूजन लिखेंगे. Introduction and conclusion, they are also important. Some students without any introduction they start the main structure and main body of the question, so this is also wrong and you need to avoid it. तो सबसे पहले आप brief introduction लिखेंगे और introduction लिखने के बाद फिर आप इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि आफ्टर फर्स्ट रिविलेशन ही बिगेन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिगेन प्रीचिंग इस्लाम टू क्लोज फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स एंड कंटिन्यूड इट सीक्रेटली फॉर अराउंड 3 years, ठीक है. तो पहली रेविलेशन के हवाले से थोड़ा सा आप बताएंगे क्योंकि की वर्ड्स सबसे पहले आपने क्वेश्चन के देखने होते हैं. तो अब आप यहाँ पे अगर देखें तो आपको जो की वर्ड्स नज़र आ रहे हैं तो उसमें देखें कि गिव एन अकाउंट ऑफ द वे इन विच द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड टू प्रीच इस्लाम इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स आफ्टर ही रिसीव फर्स्ट रेविलेशन. तो फर्स्ट रेविलेशन को थोड़ा सा यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, उसके सर्कमस्टेंसेस को बताएंगे, लेकिन पूरी वही का जो इंसिडेंट है वो नहीं लिखना है यहाँ पे, क्योंकि आपको आगे काफ़ी कुछ लिखने के बारे में कहा जा रहा है. तो आप मेंशन करेंगे, सिर्फ मेंशन करते हुए चलेंगे कि आफ्टर फर्स्ट रेविलेशन देन होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि सीक्रेटली इस्लाम फैलाना शुरू किया. और जो पहला काम था वो कहाँ फैलाया आपने इस्लाम, वो फैमिली मेम्बर्स को और फ्रेंड्स को. क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप अचानक से ही पहली फुर्सत में बाहर अगर लोगों को फैलाना शुरू कर देते तो लोगों ने आपको मजाक उड़ाना था और आपका जो मैसेज था वो सही तरह से लोग उसको सुनने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि वो ये टॉन्ट कर सकते थे कि अभी आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने तो आपको माना नहीं है, वो आपके मैसेज को नहीं मानते, तो हम क्यों माने, ठीक है. तो इसलिए होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले स्टार्ट किया क्लोज फैमिली मेम्बर से और फ्रेंड्स से. द नेम्स ऑफ अर्ली कन्वर्ट्स, यू नो द नेम्स आई होप, हज़रत अबू बकर, हज़रत खतीजा की, हज़रत बिलाल, हज़रत अली एंड सो ऑन, ठीक है. तो 8-10 जो नाम हैं अर्ली कन्वर्ट्स के, वो आप जब आपके फ्लो में जब मेन बॉडी में क्वेश्चन के आएंगे आप तो वहाँ पे आप एक पैराग्राफ आपने अर्ली कन्वर्ट्स के बारे में लिखना है. देन यू शुड राइट अबाउट द रेविलेशन 26, सूरह नंबर 26 आयत नंबर 214 इन विच ही वॉज द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज कमांडेड टू प्रीच इस्लाम टू हिज किन्समैन पब्लिकली. तो ये 3 साल के बाद की बात है. तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा गया कि वह अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि आप जो आपके जो रिश्तेदार हैं उन रिश्तेदारों को आप इस्लाम की दावत देना शुरू कर दीजिए. दैन होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही डिसाइडेड टू हैव टू गिव ओपन इन्विटेशन टू हिज क्लैन टू बनु हाशिम. उसके लिए आपने एक डिनर अरेंज किया और उस डिनर में अबू तालिब, अबू लहब और बाकी जितने भी बड़े बड़े सरदार और बाकी जो भी जो बनु हाशिम के लोग थे उन सबको दावत दी गई. तो खाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इनवाइट किया और उन्हें इस्लाम का पैगाम पहुंचाया. तो अबू लहब ने, जिस तरह कि वो था होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंकल, बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज वन ऑफ द बिटरेस्ट एनिमीज़ ऑफ इस्लाम. तो अबू लहब ने ख़ास तौर पर बहुत मुखालफत की, बाकी बहुत से लोग खामोश बैठे रहे. हज़रत अली वाज द ओनली वन हु ओपनली सपोर्टेड द मिशन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो आप कह सकते हैं कि ये जो तरीका था जिस तरह होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत पहुंचाई अभी अपने ट्राइब में, तो वो फौरी तौर पर इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरहाल एक स्टार्ट ले लिया और आहिस्ता आहिस्ता फिर लोग मज़ीद बढ़ना शुरू हुए. एंड देन आफ्टर सम टाइम देन ही रिसीव्ड द रेविलेशन. आप फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हुए आंसर को आगे लिखेंगे कि देन रिसीव्ड द रेविलेशन 1594 इन विच ही वॉज कमांडेड टू प्रीच एवरीबडी पब्लिकली. ठीक.
तो ये तकरीबन 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका था, इसलिए होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब ये कहा गया कि अब मज़ीद सीक्रेटली नहीं बल्कि अब पब्लिकली इस्लाम की दावत देना शुरू कर दें। सो दैट वाज द टाइम व्हेन ही वेंट अपॉन माउंट सफ़ा। उस वक्त की ये ट्रेडिशन थी कि जब भी कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट, कोई इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट कोई शेयर करना चाहता था तो माउंट जो छोटे छोटे वहाँ पर थे, हिल थी सफ़ा, तो उसके ऊपर चढ़ जाते थे। या फिर जबल अबू कबीस वहाँ करीब में था मक्का में, उसके ऊपर कुछ लोग चढ़कर को जो है ना इस तरह की अनाउंसमेंट करते थे। तो लोग सारे के सारे जमा हो जाते थे और उसके बाद फिर वो अनाउंसमेंट की जाती थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सफ़ा हिल के ऊपर खड़े होकर या माशर अपना कुरैश कहकर लोगों को मुखातब किया, उनको बुलाया। जब सारे लोग जमा हो गए तो फिर आपने, वो मशहूर वाक़या आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है कि पहले उनसे यही कहा कि क्या तुम समझते हो कि मैं अगर तुम्हें ये कहूँ कि पहाड़ी के पीछे से एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है, सो वुड यू बिलीव इन इट? So all of them in one voice they said yes, we would believe because we have never heard you telling lie. You are Sadiq and Amin. So that was the way how the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam tried to convince them, and he managed to convince them. But still, when he said, "Okay, then please say la ilaha illallah," so then all of them they shocked, okay, and they refused. Many of them refused. Abu Lahab even started to ridicule the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. He began humiliating him by passing, in fact, humiliating remarks to him. Again, Hazrat Ali रज़ियल्लाहु ताला अन्हु was there to support him. ठीक है, तो हज़रत अबू बकर और बाकी जितने थे वो तो खैर पहले ही इस्लाम कबूल कर चुके थे। तो ये दावत उन लोगों के लिए थी कि जो इस्लाम जिन्होंने कबूल नहीं किया था। हज़रत अली छोटे थे, अभी 10 साल के थे और होली प्रॉफिट के साथ ही रहते थे, आपके कज़न भी थे, तो वो वहाँ मौजूद थे, इसलिए आपने बार बार वहाँ पर भी हिमायत का इजहार किया। होली प्रॉफिट की ख्वाहिश थी कि बाकी भी जो कुरैश के लोग हैं वो कोई बेहतर रिस्पॉन्स दें, बट दे डिड नॉट। ठीक, सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू मैनेज दिस आंसर, ठीक है, थ्रू दिस गाइडलाइंस, एंड आई होप कि आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो फिर आपके लिए ये बेहतर आंसर लिखने की आप पोजीशन में होंगे। एंड नाउ इम्पॉर्टेंट टिप फॉर यू इज़ दैट डू कोट रेलिवेंट कोटेशंस विद रेफरेंसेस। ओके, सो रेलिवेंट कोटेशंस, रिमेंबर दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो अगर आप रेलिवेंट कोटेशंस जो है ना वो अगर आप नहीं लेकर आते तो ये देखें, ये जो आपके पास यहाँ पे रेलिवेंट कोटेशन है ये 1594 है, और उसके बाद फिर आपके पास ये 26 to 214। ठीक है, तो इनका रेफरेंस भी आपने मेंशन करना है। दो सूरतें, या तो इनका सिर्फ रेफरेंस मेंशन कर दें और ये बता दें कि उसका मैसेज क्या है, और दूसरी सूरत ये है कि अगर आपको रेफरेंस याद नहीं तो एटलीस्ट इन्वर्टेड कॉमास में फिर आप जो कोटेशन है वो दें। ठीक है, ये कोटेशन जब भी आप 10 मार्क्स के आंसर में देते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं 8, 9 या 10 मार्क्स गेन करने के। ठीक है, सो डू कोट रेलिवेंट कोटेशन इफ़ इट इज़, द कोटेशन मस्ट बी रेलिवेंट and then you need to link it properly with your answer as well. Okay, irrelevant कोटेशन हमने नहीं देनी, और कोटेशन अगर ऐसे दें कि उसको हम डिस्क्राइब नहीं करें प्रॉपरली तो तब भी उसका फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, सो आई होप कि बात आपको समझ में आ गई। चलें, लेट्स मूव टू नाउ इट्स पार्ट बी। पार्ट बी हमारे पास है, was it significant that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam began preaching the message in secret? ठीक है, दैट्स नाइस क्वेश्चन, एंड आई होप कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे। तो कबल इसके कि मैं आपको इसका आंसर बताऊं तो आप ख़ुद भी अपने कुछ पॉइंट सोच लीजिए, और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो ज़रा उसको टैली करके देखिएगा कि क्या आप भी उन पॉइंट्स तक पहुंच पाए जो पॉइंट्स में अभी आपको आगे जिनके बारे में आपको मैं गाइड करने जा रहा हूं। ठीक है, इस तरह अपने माइंड को असेस करते रहें, चेक करते रहें। इससे क्या होगा कि नए नए क्वेश्चन, अगर कोई नया क्वेश्चन भी अगर आपके पास अगर आ जाता है एग्ज़ाम में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो आप कैसे असेस कर सकते हैं, जैसे ही कोई क्वेश्चन पार्ट बी का आता है तो बजाय इसके कि डायरेक्टली आप उसकी कोई मार्किंग स्कीम इधर उधर से देखने की कोशिश करें, या पास पेपर या सॉल्व कोई पास पेपर ढूंढने की कोशिश करें, या डायरेक्ट टीचर के पास जाके उनसे पूछने की कोशिश करें, फर्स्ट यू शुड ट्राई योर सेल्फ टू अटेम्प्ट इट। ठीक है, उसको कोशिश करें, सोचें उसके बारे में, बुक्स वगैरह सब बंद कर दें। एक बात जहन में रख लीजिए कि पार्ट बी के क्वेश्चन इसी तरह से दिमाग यूज़ करने से
और जिनकी रीजनिंग स्किल्स अच्छी होती है और वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, वो ही ज़्यादा बेहतर अंदाज में पार्ट बी के क्वेश्चंस कर पाते हैं। पार्ट बी के क्वेश्चंस में इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है कि कोई भी टीचर किसी भी स्कूल में या किसी एकेडमी में आपको वो सारे के सारे पार्ट बी के क्वेश्चंस कवर नहीं करवा सकता, ठीक है। तो आप पास्ट पेपर्स में भी देख सकते हैं। तो अब करना क्या होता है, करना यही होता है कि आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है, अपना जहन बनाना होता है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें डेवलप होती हैं और आई होप कि आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। अगर नहीं की है आपने तो आप यहाँ देखिए कि हम पार्ट बी का आंसर कैसे डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। और पूरा एक कंप्लीट डेवलप्ड आंसर इंशाल्लाह थर्ड वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ अभी मैं आपको थोड़ी थोड़ी गाइडलाइन देता जा रहा हूँ, तो पहले आप इन गाइडलाइंस की रोशनी में आप कोशिश करें कि अपना आंसर डेवलप करें, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी डेवलप नहीं कर पा रहे और आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो इंशाल्लाह थर्ड वीडियो में मैं आपको एक पूरा एक आंसर डेवलप करके सिखाऊंगा भी, जो आपके लिए यकीनन बहुत हेल्पफुल होगा और जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आप अपना पूरा आंसर किस तरह से डेवलप कर सकते हैं और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 मार्क्स कैसे सिक्योर करना इंश्योर कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें हमारे पास जो गाइडलाइंस हैं, तो सबसे पहले कि सीक्रेटली क्यों ये किया, तो इसमें जनरली आप को आपकी जो ऑब्जर्वेशन है आप ख़ुद सोचिए कि अगर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में ही एक मैसेज ऐसा है, बिल्कुल नई चीज़ है, वो लोग ऐसे थे कि जो इनफैक्ट वो साल हाँ साल से सम पीपल they were busy for around 15 years, some other for 20 years, some other for 30, some other for 40 years in idol worshipping, in drinking wine, in gambling, okay, in adultery and every type of vice, okay. So they did not want that their influence and their power might be taken back. तो डेफिनेटली उन्होंने रेजिस्ट किया, बाद में भी रेजिस्ट किया, लेकिन अगर शुरू में होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने ये बात करते तो उन्होंने इसको होली प्रॉफिट का मजाक उड़ाना था बहुत ज़्यादा। तो पहले कोई भी आप ऐसा काम शुरू करते हैं तो आपकी ख्वाहिश होती है कि आपके करीबी जितने भी हों एटलीस्ट वो तो पहले सपोर्ट करना शुरू करें, उनको पहले आप कॉन्फिडेंस में लेते हैं। जो शरीफ लोग होते हैं, जो आपकी बात को समझना चाह रहे होते हैं, तो उनको आप कॉन्फिडेंस में लेते हैं। और जब आप अपना एक हल्का थोड़ा सा बना लेते हैं, आपकी एक सपोर्ट बन जाती है, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उस मामले को पब्लिकली करते हैं। यही एक वाइज तरीका होता है, ठीक है। तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल एंड इसी तरीके से ही ये काम किया। ऑल्दो ही हैड द सपोर्ट ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, लेकिन हमें होली प्रॉफिट के तरीके से ये बात पता चली कि अल्लाह तबारक व तआला की मंशा भी यही थी कि आप ये काम ऐसे ही करें। इसीलिए 3 साल तक आप जब खामोशी के साथ सीक्रेटली करते रहे तो अल्लाह ताला ने होली प्रॉफिट को ये नहीं फरमाया कि आप क्यों कर रहे हैं काम इस तरह से, आपको ओपनली पब्लिकली करना चाहिए, ठीक। तो अल्लाह ताला ने कोई रेवलेशन पब्लिकली के हवाले से नाजिल नहीं की। इट मीन्स कि अल्लाह की मंशा भी यही थी कि आप आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली ये काम करें। जो काम भी स्टेप बाय स्टेप होता है वो पायदार होता है, ठीक है, उसमें ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यही मामला भी है कि आप ये जो आंसर टेक्निक और ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह बिफोर एग्ज़ाम्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लेकिन अगर बिल्कुल आखिरी दिनों में पेपर से 2-3 दिन पहले अगर आप वीडियोस देखें और फिर ये समझने की कोशिश करें, सो देन इट माइट बिकम डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सिक्योर बेटर ग्रेड, ठीक है। तो जितना जल्दी ये सारी वीडियोस देखेंगे आप और फिर इनको जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ दी जा रही है उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके उतने ही चांसेस डिज़ायर्ड ग्रेड लेने के बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे वही पॉइंट्स हमने डेवलप किए कि इनिशियली पीपल वर रिलैक्टेंट टू एक्सेप्ट हिज मैसेज। Had it been revealed earlier, he could have received more severe position in humiliation. सबसे बड़ा मामला जो है ना वो ह्यूमिलिएशन का हो सकता था। लोग मजाक उड़ाते जिससे होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिमोरलाइज हो सकते थे, ठीक है। कि मतलब अगर बिल्कुल ही कहीं से अभी सपोर्ट हो ही ना और कुछ ऐसे लोगों से मामला शेयर कर दिया जाए कि जो मजाक उड़ाना शुरू कर दें, तो आप भी जानते हैं कि आप कोई ऐसी बात अगर करना चाह रहे हो तो कोई नया आइडिया हो आपके जहन में, तो आप बहुत ज़्यादा सोच समझकर वो बात किसी से करते हैं। ऐसे किसी शख्स से वो बात शेयर नहीं करते जिसके बारे में आपको गुमान हो कि वो आपकी बात का मजाक उड़ाएगा। हाँ, जब आप थोड़े इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो उसके बाद फिर
आप इस बात की भी फिक्र नहीं करते कि कोई आपका मजाक उड़ाता है या कोई आपको ह्यूमिलिएट करता है. सो द सेम थिंग वॉज डन बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एंड देन वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि ही वेटेड टिल गॉड कमांडेड हिम टू प्रीच ओपनली. तो अल्लाह ताला ने शुरू में भी ये बात मेंशन नहीं की थी, तो इसलिए होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो कंटिन्यू रखा होली प्रॉफिट ने. और फिर जब रेविलेशन आई भी तो उसमें यही कहा गया कि भाई अभी आप जो है ना अपने घर वालों को और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ओपनली तबलीग करें, प्रीच करें. तो आपने ये काम किया. बट व्हेन ही वाज आस्क्ड टू स्टार्ट प्रीचिंग पब्लिकली सो ही डिड द सेम थिंग. अच्छा, फिर उसके बाद दी फॉलोवर्स वर आल्सो नाउ दे वर वेल सेटल्ड. पहले मतलब जो फॉलोवर्स की कैफियत थी वो अभी आहिस्ता आहिस्ता अभी वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया था. अच्छा, शुरू में ही अब अगर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें 3 साल बहुत होते हैं. इन 3 सालों में बहुत ज़्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया. ठीक है, तो जो अगर हम बात करें तो वो उनकी तादाद 20-25 से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये सारे डाई हार्ट थे. ठीक है ना, इन्होंने अच्छी तरह से इस्लाम को समझ लिया था. इनके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि दे वर नाउ फुली कन्विंस्ड ऑन कुरैश फॉल्स बिलीव्स. ये समझ गए थे कि कुरैश जो है ना उनके जो बिलीव्स हैं वो गलत हैं, और वो तौहीद के मैसेज को समझ चुके थे, वो प्रॉफिटहुड के मैसेज को, लाइफ आफ्टर डेथ को, वो इन चीज़ों को इतनी अच्छी तरह से समझ चुके थे कि अब जब ओपनली अनाउंसमेंट हुई तो इन लोगों के ऊपर जब टॉर्चर भी किया गया तो इन्होंने उस टॉर्चर को तो बर्दाश्त किया, बट दे डिड नॉट रिनाउंस देयर फेथ. ओके, नाउ दे वर कमिटेड टू फेस एनी टाइप ऑफ चैलेंज. ठीक हो गया. तो दिस इज़ हाउ यू कैन डिवेलप योर आंसर. ठीक, तो सीक्रेटली अगर मैं आपको इसको समअप करूं तो सीक्रेटली करने में फ़ायदा था. अगर आप ओपनली ही शुरू में स्टार्ट कर देते तो फिर उससे नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा थे. सो कीपिंग इन माइंड ऑल दीज एस्पेक्ट्स द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ऑप्टेड दिस स्ट्रेटजी. एंड वाज इट सिग्निफिकेंट? यस, आप इसको एग्री करेंगे, यस इट वाज सिग्निफिकेंट. अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ख़िलाफ़ करते तो यकीनन उसमें फ़ायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा होने के चांसेस थे. ठीक. एंड नाउ इम्पॉर्टेंट टिप फॉर यू, ऑलवेज डिवेलप योर पॉइंट्स वेल. ठीक है, यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए एक एक लाइन्स की गाइडलाइंस दी हैं, बट योर आंसर शुड नॉट बी लाइक दिस. ठीक है, आपने कंटिन्यूस प्रोस में अपना एक आंसर डिवेलप करना होता है. ठीक है, तो पॉइंट्स को डिवेलप कीजिए, कनेक्टिंग वर्ड्स यूज़ करें, ज़्यादा छोटे छोटे सेंटेंसेस को अवॉइड करें, और अचानक से छोटे छोटे सेंटेंसेस के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जंप करने को भी अवॉइड करें. एक जो पॉइंट बनाएं तो उसको कम से कम उसके बारे में 2-3 लाइनें लिखें. बेहतर है कि 3 लाइनों से ज़्यादा लिखें, उसके बाद दूसरे पॉइंट की तरफ स्विच करें. ठीक, अगर आप 2 डिवेलप पॉइंट्स लिखते हैं पार्ट बी में तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको 4 मार्क्स पूरे मिल जाएं, बजाय इसके कि आप 4 पॉइंट्स लिखते हैं लेकिन चारों ही अनडिवेलप्ड छोड़ दें. ठीक है, चारों इस तरह से लिखें कि उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं हो, और चारों ही अनक्लियर हों, वो डिवेलप नहीं किए गए हों, और उनमें कोई आपस में कोई रब्त नज़र नहीं आ रहा हो. सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अवॉइड. ठीक, तो पार्ट बी के आंसर्स के लिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टिप कि आपका जो आंसर है वो वेल डिवेलप्ड होना चाहिए. चलें, नाउ लेट्स मूव. आई होप कि बात ये समझ में आ गई है. अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. तो इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे. एक क्वेश्चन हमने कर लिया, अब एक और आखिरी क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो आई होप कि आप अलर्ट होंगे. अगर आप थक गए हैं तो नो प्रॉब्लम, वीडियो को पॉज कर दीजिए. ठीक है, पानी पी लीजिए, आराम कर लीजिए, और फिर कुछ देर के बाद दोबारा आके देख लीजिए. ठीक, रिमेंबर, अगर आप इसको लापरवाही से देखेंगे और अगर आप थके हुए हैं और उस तरह से फिर भी आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको बात समझ में नहीं आए. ठीक है, तो बिल्कुल अलर्ट और एनर्जेटिक होकर आपने समझने की कोशिश करनी है. और अगर इसमें वन गो में आपको मुश्किल हो रही है तो नो प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन जिस तरह से मैंने डिस्कस कर लिया है तो आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपने कहाँ पे छोड़ा है. तो नेक्स्ट टाइम आप दोबारा 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद दोबारा से आप ज्वाइन करके वीडियो ओपन करके आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं. ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कुरान सेज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ ऑफ ग्रेट मोरल कैरेक्टर. ओके, आइडेंटिफाई इवेंट्स फ्रॉम हिज लाइफ दैट शो अ रेंज ऑफ हिज मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स.
आई होप कि आप में से बहुत सारे बच्चों को इसकी कुछ आउटलाइन समझ में आ गई होंगी। तो अगेन यहाँ पे भी मैं आपको ये चैलेंज देना चाहूँगा कि इससे पहले कि मैं आपको गाइडलाइंस दूँ, और प्लीज़ वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके गाइडलाइंस यहाँ देखना शुरू ना कीजिएगा, ठीक है, और जल्दी ना कीजिएगा, ठीक है। आप ये ना सोचें कि सर जो है ना बिला वजह जो है ना ये रोक रहे हैं, तो आप वीडियो को आगे बढ़ा बढ़ा के आप देखना शुरू कर दें, तो इसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है। दरमियान में हम जितनी भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें आपके लिए बहुत कुछ है। इम्पॉर्टेंट टिप्स हम दरमियान में हर जो है ना मिनट में डिस्कस करते जा रहे हैं। तो अगर आप स्किप कर कर करके देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें हो सकता है आप बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर जाएं, ठीक है। तो प्लीज़ हौसले के साथ देखिए, और स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वीडियो थोड़ी तवील हो रही है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि आप इसको वन गो में ज़रूरी नहीं है आप देखें, आप 2 दफ़ा या 3 दफ़ा में भी इसको देख सकते हैं, ठीक। अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन की भी आप अलग से आउटलाइन बना लीजिए, ठीक है। और अब मैं चलता हूँ आपको गाइड करने की तरफ। अगर आप अपनी आउटलाइन आई थिंक के बना चुके होंगे, तो फिर आप देखिएगा कि क्या आपकी जो आउटलाइन बनाई है, आपने एक खाका बनाया है इसका इस आंसर के लिए, तो क्या वो इससे हमारे आंसर से, हमारी गाइडलाइन से वो मीट करता है या नहीं। आई होप कि आपने काफ़ी हद तक बेहतर आंसर क्रिएट कर लिया होगा, लेकिन मैं कुछ आपको मज़ीद गाइड करने की तरफ बढ़ता हूँ आगे। So first of all, you need to write again introduction, as I have told you that you need to write proper introduction, okay, for every 10 marks question, whether you are doing question number 2, whether you are attempting question number 3 or 4 or 5, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन आप लिख रहे हैं उसके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, समटाइम बहुत बड़े इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उनका एक ख़ास बैकग्राउंड होता है, तो वो बैकग्राउंड आप मेंशन करेंगे। कुछ होते हैं कि उनका बैकग्राउंड नहीं, तो फिर भी इंट्रोडक्शन में आप को ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ थोड़ा सा होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज़ हैं उसका एक थोड़ी सी आप समरी बयान करेंगे इंट्रोडक्शन में, ठीक। मैं जानता हूं कि आप आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज़ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चैप्टर यकीनन पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, फॉरगिवनेस और बाकी जो क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ा है, ठीक। तो आप जानते हैं कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की मदनी लाइफ, and then holy prophet's behavior towards others, and then some outstanding qualities of the holy prophet. All these topics and chapters, they are part of section 3, और जनरली जो क्वेश्चन सेट किया जाता है क्वेश्चन 3 या 4, वो इस पूरे सेक्शन में से किसी से भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से? आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज़ में से, ठीक। एंड दैट वाज फ्रॉम विंटर 15। तो अब इसमें सबसे पहले काम जो आपने करना है वो यही करना है कि आपने 68.4, ठीक है, ये जो 68.4 ये आयत है, ये आपने कोट करनी है जो आपको यहाँ दी हुई है। ज़ाहिर है कि बिल्कुल शुरू में नहीं करनी, हमेशा याद रखें कि आपने कभी अपना आंसर आयत से स्टार्ट भी नहीं करना और आयत या हदीस पर ख़त्म भी नहीं करना। कोटेशन हमेशा दरमियान में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कोटेशन इंट्रोडक्शन में आप देंगे, लेकिन बिल्कुल शुरू में नहीं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर आप ये बात करेंगे। यू विल कोट 68.4 और आप लिखेंगे कि एंड यू आर ट्रूली अ मैन ऑफ आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, हु सेड? अल्लाह ऑलमाइटी। तो अल्लाह ताला ने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ़ की है तो उसको आप मेंशन करेंगे। एंड नाउ उसमें शुरू में आप बताएंगे कि वैसे तो बहुत सारी आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज़ हैं होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके बाद लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने जो पढ़ी हैं आई थिंक वो भी ज़्यादा हैं, तो आपने उनमें से कुछ जो है ना आइडेंटिफाई इवेंट्स फ्रॉम हिज लाइफ दैट शो रेंज ऑफ हिज मॉरल कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ कि कितने इवेंट, और ये भी मेंशन नहीं किया हुआ कि जो मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें से कितनों को आपने लेना है, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें कोई एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया गया हो, तो अब डिपेंड करता है, ठीक है ना, आपने कम से कम 2 तो लेनी है। तो आपने करना क्या है कि काइंडनेस और फॉरगिवनेस हम कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो काइंडनेस और फॉरगिवनेस के हवाले से फिर हमने कुछ इवेंट्स जो है ना वो मेंशन करने हैं। फॉर एग्जांपल, ही फॉरगेव द पीपल ऑफ ताइफ एंड देन आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का ही फॉरगेव हिंद, या हिंदा भी कहते हैं उनको, हिंदा और वहशी, एंड देन ही फॉरगेव द कैप्टिव्स ऑफ बदर, एंड देन ही फॉरगेव अब्दुल्ला बिन उबई। तो वो सारे वाक़यात जो आपके पास मेंशन किए हुए हैं बुक्स में,
तो वो आप वन बाय वन उनको मेंशन करेंगे, इफ़ यू हैव ऑप्टेड फॉरगिवनेस और काइंडनेस, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद यू मे मेंशन ऑनेस्टी ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, यहाँ ये बात जहन में रखिएगा कि आपकी बुक में ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस और फुलफिलमेंट ऑफ प्रोमिसेस, इन तीनों को अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। बट रिमेंबर, मेनली ऑल ऑफ देम they are under, they fall under honesty. Okay, so it's better for you to opt honesty, and then under honesty you should include these topics. Okay, for example, these events as a trader, किस तरह से आपने, हज़रत खदीजा ने जब आपको कहा तो आप कैसे वहाँ पे गए और डबल प्रॉफिट लेकर आए, ऑनेस्टी आपने शो की, और हज़रत खदीजा ने इंस्पायर होकर फिर आपको प्रपोज़ किया। एट फिक्सिंग ऑफ ब्लैक स्टोन, किस तरह से लोगों ने शाउट करके कहा कि यू आर सादिक एंड अमीन, ठीक। फिर इसी तरह से अबू सुफियान ने किस तरह से जब वो अपना उधर हिरैक्लिस के पास था तो वहाँ कैसे होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनेस्टी को जो है एक्नॉलेज किया, इवन दो ही वाज नॉन बिलीवर बट स्टिल ही एक्नॉलेज्ड द ऑनेस्टी ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। And then most importantly, people, they would entrust their valuables, the Quraysh, they would entrust their valuables to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, even though they were his enemies. So it again shows the level of his honesty. And then on the night of Hijrah, he handed over all these things, his valuables, to Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, and ensured and asked him to return all these valuables, and then he could also migrate towards Medina. तो इन तमाम चीज़ों से इनको आप मेंशन करेंगे, और ये चाहें तो फिर उसके बाद हम्बलनेस के हवाले से भी आप कर सकते हैं। वैसे 2 इनफ हैं, लेकिन अगर 2 के बारे में ज़्यादा इवेंट्स आपके पास नहीं है तो फिर आप 3 भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सो हम्बलनेस के बारे में, ये ह्यूमिलिटी के बारे में भी आप लिख सकते हैं। यू मे राइट दैट हम्बल वाइल एंटरिंग मक्का, तो उस वक्त किस तरह से हम्बलनेस आपने शो की कि इवन आप झुक कर जा रहे थे और आप जो उसकी सैडल थी उसकी अपना कैमल की, उससे जो ना आपका चेहरा जो था वो नीचे लग रहा था, मतलब आपके अंदर कोई प्राउड, कोई एरोगेंस नहीं थी। नेवर लाइक टू बी ऑनर्ड, एंड जिस तरह आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि आप इस बात को पसंद नहीं करते थे कि लोग बहुत ज़्यादा मतलब आपका उस तरह से एहतराम करें जैसे बादशाह जो उस वक्त के थे पहले, उनका एहतराम इस तरह से किया जाता था। लोग ज़ाहिर है कि मोहब्बत में एहतराम करते थे, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से आपने कभी लोगों को ये नहीं कहा कि मेरे आने पर आप खड़े हो जाएं, या फिर ये कि मैं अगर कोई खड़ा नहीं होगा तो उसको आप नापसंद करते हो। तो जिस तरह जो उस वक्त के बादशाह थे तो लोग उनके किरदार को पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनके रवैये, उनके गुस्से की वजह से उनका एहतराम करने पे मजबूर थे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला मुख्तलिफ था। आपकी ये ख्वाहिश नहीं होती थी, लेकिन लोग आपके कैरेक्टर की वजह से और आप की इन आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज़ की वजह से आपका दिल और जान से एहतराम करते थे। और उसकी जो है ना हमारे पास कंपेनियंस के हवाले से बेशुमार इवेंट्स मौजूद हैं। तो लेकिन बट द पॉइंट विच वी वांट टू मेक हियर टू शो हिज हम्बलनेस, कि आप लोगों को कभी ये नहीं कहते थे कि मतलब जैसे ही मैं आऊँ तो आप खड़े हो जाएं। तो ये पॉइंट आपने डेवलप करना, इट शोज़ हिज हम्बलनेस। एंड देन ही मेंटेड हिज क्लोथ्स एंड शूज़। तो डोमेस्टिक लाइफ में भी आपने हम्बलनेस शो की, और इसमें इस तरह के कामों में आपने आर महसूस नहीं की। ही वुड विजिट द सिक। कुछ लोग जो अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं तो वो इवन पड़ोसियों के घरों में या बीमारों के पास जाना जो है ना अपने लिए तौहीन समझ रहे होते हैं। ही वुड एक्सेप्ट इवन द इन्विटेशन ऑफ स्लेव्स। गरीबों की, स्लेव्स की इन्विटेशन भी एक्सेप्ट करते थे और उनको अपने पास हाई रैंक भी देते थे, उनको बिठाते भी थे। So this is how you can develop your answer. In the end, you have to write brief conclusion as I have earlier communicated to you. Important tip यहाँ पर मैं आपको जो देना चाहूँगा वो ये है कि to finish your paper perfectly, you need to manage your time wisely. ठीक है, आपने करना ये है कि जो पार्ट ए का क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने 13 to 15 मिनट्स में हर सूरत में मैनेज करना है। We need to learn how to write your part A answer within 13 to 15 मिनट्स। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 20 मिनट्स लगा रहे हैं इस पार्ट ए में तो यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट योर होल पेपर प्रॉपरली। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिलाकर, खा वो क्वेश्चन 2 हो या क्वेश्चन 3 हो या 4 हो, आपको मैक्सिमम 20 से 22 मिनट्स तक जो है ना लगाने चाहिए।
तो इस तरह से फिर क्या होगा कि 4 क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें आपने 24 ज़ा 80, तो टोटल 90 मिनट्स आपके पास होते हैं। 5 मिनट्स आपको शुरू में पेपर पढ़ना चाहिए, उसको अच्छी तरह से गो थ्रू करना चाहिए, और 5 मिनट्स आखिर में भी आप रखें ताकि आप अपने आंसर्स को भी दोबारा से ज़रा रीचेक कर सकें। ठीक, तो 20 से 22 मिनट्स में पूरा क्वेश्चन, और 15 मिनट्स में आपने लाजमी तौर पर पार्ट ए करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो फिर आखिर में आप स्ट्रगल करेंगे। ओके, so let's move to now last question, which is part B of this question, last question of this video. So we have now the question, which of the prophet's characteristics you have written about in part A is the most important in your opinion and why? Okay, तो इसके लिए हमारे पास जो हमने पार्ट ए में ऑनेस्टी के बारे में लिखा, फॉरगिवनेस के बारे में लिखा, हम्बलनेस के बारे में लिखा, एंड यू कैन ऑप्ट एनी वन ऑफ दैम, लेकिन लिखना एक ही के बारे में, 2 या 3 के बारे में कुछ स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग। तो हम यहाँ ऑनेस्टी के बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, आप लेकिन ख़ुद से आप ट्राई करें, कुछ हम्बलनेस के हवाले से भी पॉइंट्स डेवलप करें, कुछ फॉरगिवनेस के हवाले से भी, ताकि अगर लेट से कि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और वो यहाँ तो उन्होंने ये नहीं पूछा, मेंशन नहीं किया स्पेसिफिकली कि उसके बारे में लिखें, लेकिन स्पेसिफिकली अगर एग्ज़ाम में आपसे कहा जाता है कि फॉरगिवनेस के बारे में बताइए कि वो कैसे इंपॉर्टेंट है, या कहा जाता है कि हम्बलनेस कैसे इंपॉर्टेंट है, सो यू शुड बी एबल टू राइट। तो देखिए ऑनेस्टी को जिस तरह हमने डेवलप किया है उसी पैटर्न पे आप फॉरगिवनेस और हम्बलनेस का डेवलप करें। ओके, और फिर उसको किसी एक्सपर्ट को या टीचर को शो कराइए। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस करके आप जो पॉसिबली या मतलब मुमकिन तौर पर क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उनके बारे में सोचें। देखिए एंटिसिपेट करें। आप सिर्फ अगर इसी क्वेश्चन को देखेंगे और सोचेंगे इसके बारे में, तो फिर आपके लिए अगर कोई अचानक से कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने स्कूल में या क्लास में नहीं किया हो, तो फिर आप घबरा जाएंगे, आप नर्वस हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और वहाँ पे कंफ्यूज होने का, नर्वस होने का टाइम नहीं होता। ठीक है, आपके पास 90 मिनट्स होते हैं। बहुत सारे बच्चे सिर्फ नर्वसनेस की वजह से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और एक और प्रॉब्लम ये भी है कि काफ़ी टाइम से यही हो रहा है कि इस्लामियात का पेपर जो है वो पहला पेपर होता है। तो कैम्ब्रिज में जब आप लोग जाते हैं C2 में, पहली दफ़ा कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम में, एक बड़े एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे होते हैं, और पहले पेपर में नर्वसनेस ज़्यादा होती है। ठीक है, कंफ्यूज होते हैं आप। तो इस्लामियात का ये पहला पेपर ही हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें अगर आप कन्फ्यूजन में रहे, नर्वस रहे, तो ऐसा फिर चांसेस हो जाते हैं कि आप अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएँ। और अगर आप एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ देते हैं या 10 मार्क्स का इनकम्प्लीट करके आते हैं, तो आपके चांसेस A* सिक्योर करने के बहुत कम हो जाते हैं। सो नेवर लीव एनी क्वेश्चन। आपको सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, लाजमी तौर पे करने हैं, और उसके लिए प्रैक्टिस करनी है टाइम मैनेजमेंट की। ओके, तो आपने ऑनेस्टी का मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑनेस्टी इज़ हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सच लेवल ऑफ ऑनेस्टी फ्रॉम एनी ह्यूमन बीइंग। तो ये आप पॉइंट्स डेवलप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खासा था, आप अल्लाह के नबी थे, तो आपने ऑनेस्टी की जो मिसालें कायम की हैं वो एग्जाम्पल वो अनपैरेलल हैं। ठीक है ना, वो मैचलेस हैं। So the Quraysh, they wanted to assassinate him, still he did not harm their belongings. आप सोचिए ऐसा कौन करता है, कहीं भी नहीं होता ऐसा। हम तो मतलब छोटे छोटे मामलात में हमें किसी से के साथ कोई थोड़ी सी दुश्मनी हो या किसी से छोटा सा इख्तलाफ हो, तो हम उनकी चीज़ों को या उसकी ज़ात को हम नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, the holy prophet, his case was different. Okay, they were outside, the Quraysh were outside, they wanted to kill him. Okay, but the holy prophet was worried about the belongings of the Quraysh. आपने हज़रत अली को कहा कि भाई आप यहाँ रात में यहीं पर गुजारें, और इन चीज़ों को आपने लोगों को वापस करनी है, और कल फिर आपने जो ना जब मौका मिले तो फिर आपने हिजरत के लिए आना है। ओके, सो इमेजिन, हम आमतौर पर इमेजिन नहीं कर सकते किस लेवल की आपने ऑनेस्टी और अमानतदारी का, दयानतदारी का की एग्जाम्पल कायम की। सो ही डेस्परेटली नीडेड सोल्जर्स फॉर बदर। इसी तरह से ये एग्जाम्पल भी आप कोट कर सकते हैं। बट ही डिड नॉट अलाउ 2 कंपेनियंस टू पार्टिसिपेट इन द बैटल एज दे हैड प्रॉमिस्ड द कुरैश दैट दे वुड नॉट टेक पार्ट इन द बैटल फ्रॉम मुस्लिम साइड। ठीक, तो यहाँ से भी आपको क्या बात पता चल रही है, यहाँ से भी कि इतनी अहम मौके पर भी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑनेस्टी का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। ठीक है, दयानतदारी क्या है,
प्रॉमिस को फुलफ़िल करना कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें हम कहाँ से लर्न करते हैं? हम होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टूडेज बिलीवर्स एंड दे मस्ट लर्न टू बी ऑनेस्ट इन देयर ऑल डेली लाइफ मैटर्स। तो अब ये कुछ चीज़ें मेंशन करने के बाद आप बताएंगे कि मेरी नज़र में ऑनेस्टी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच टूडेज मुस्लिम्स लैक। हर जगह बीइंग ए स्टूडेंट छोटे छोटे मामलात में हम ऑनेस्टी का मुजाहरा नहीं करते, ठीक है ना। हम होमवर्क नहीं करके आते और टीचर से हम कह देते हैं कि कोई ऐसा लेम एक्सक्यूज़ लेकर आ जाते हैं, हम झूठ बोल देते हैं, ठीक है। हम घर में अपने पेरेंट्स से झूठ बोल रहे होते हैं। बिज़नेस में हम देखें तो जो ट्रेडर्स हैं वो झूठ बोल रहे होते हैं और बददियानती कर रहे होते हैं, डिसऑनेस्टी कर रहे होते हैं। कोई चीज़ जो है ना वो सही नहीं होती है, वो लोकल होती है, उसको इम्पोर्टेड बनाकर वो फ़रोख्त कर रहे होते हैं। वो लो क्वालिटी की होती है, उसको हाई क्वालिटी की बनाकर वो सेल कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ जो मतलब हर तरफ की डिसऑनेस्टी हमें नज़र आती है। हम सिर्फ लॉ को वहाँ फॉलो करते हैं जहाँ पे हमें ख़तरा हो कि हमें कहीं गिरफ़्तार कर लिया जाएगा या हमें कहीं जुर्माना देना पड़ जाएगा, अदरवाइज़ हम लॉ को फॉलो करने की कोशिश नहीं करते। सो ऑल दीज थिंग्स दे शो दैट वी आर नॉट ऑनेस्ट इनफ, ठीक। तो ऑनेस्टी और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने लाजमी तौर पे सीखनी है। तो ये पॉइंट्स हम डेवलप करके फिर अपनी सोसाइटी के ऊपर इम्प्लीमेंट करके बताएंगे कि इन माय ओपिनियन ऑनेस्टी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी which we lack and we must try to adopt it, and we should study the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and try to learn various aspects of honesty. Okay, so this is how you can develop the answer of this question. And important tip in the end for you is opt only one quality and then develop your answer. जनरली मैं जो देखता हूँ कि स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं कि ऊपर उन्होंने 2 या 3 क्वालिटीज़ के बारे में लिखा होता है, तो यहाँ पर भी 2 या 3 क्वालिटीज़ को ही थोड़ा 4 लाइन्स में वो काइंडनेस के बारे में लिख देंगे, अगली 3 लाइन में वो फॉरगिवनेस के बारे में, और नेक्स्ट 3 लाइन्स में देन दे राइट अबाउट ऑनेस्टी। सो दिस इज़ रॉन्ग। ओके, क्वेश्चन को एड्रेस करना है। इन द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड यू टू राइट अबाउट, एज यू कैन सी, विच ऑफ द प्रॉफिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो आपको यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ही होगा, ठीक है ना। तो आपने उसको एक ही को लेना है और क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। तो 2 या 3 क्वालिटीज़ को अगर आप लिखेंगे तो फिर आप मार्क्स शायद 2 या 3 तो मिल जाएं, बट इफ़ यू वांट टू सिक्योर फुल मार्क्स तो फिर आपने क्वेश्चन को सही से एड्रेस करना है और क्वेश्चन में आप सिर्फ एक ही क्वालिटी को फोकस करके उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझते हुए उसके ऊपर कमेंट करना और उसको डेवलप करने की बात की गई है, ठीक। सो यू नीड टू डेवलप योर आंसर बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस क्लियरली, एंड इंपॉर्टेंट टिप इज टू चूज ओनली वन। ओके, सो दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स। और इसके साथ ही हम ये जो हमारी वीडियो है हम इसको कंक्लूड करते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और टिप्स के साथ मैं हाज़िर हूँगा। आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।